Right. So chapter number 13 from Geosystems by Robert Christopherson. And the title of this chapter is Weathering, Karst Landscapes, and Mass Movement. So let's explain these terminologies briefly. Weathering, simply we can call weathering as the process of breakup of rocks. So when the rocks break up, that process is called as weathering. Karst landscapes, these are special types of landscape. Landscape means areas which is special feature with its significant feature. So those areas which have more than 80% of limestone in them. So when we look at the composition of the rocks in a karst landscape, then it has more limestone, that is more than 80%. Then third terminology is mass movement. And mass movement is the process of movement of rocks. Like mass means anything. And since we are talking about lithosphere in this whole semester, so that mass is actually broken rocks. And when those broken rocks or material, when they move under the force of gravity, then it is called as mass movement. So when it moves because of gravity, it is mass movement. Weathering, when the rocks are breaking up due to any reason. And karst landscape, the landscapes, the areas where the rocks have more limestone, that is calcium carbonate. All right. Now, um, so in this chapter, we will talk about physical and chemical weathering processes. Um, like I have told a while ago, that weathering is the process of breakdown of rocks. So the rocks break down due to some physical reasons, and sometimes due to chemical reasons. So we will look into those different processes of rock breakdown or weathering. And then we will talk about the limestone regions, that is the karst landscape. And in a karst landscape, or an area where limestones are more, in those areas some special features are formed, और वो special features हैं sinkholes, caves और cavern. Cave कहते हैं गार को, और cavern it's larger in size. दोनों गार जैसे ही हैं, but caves are smaller while caverns are larger. Okay, then we will talk about mass movement. कौन कौन से processes हैं जो mass movement जिसमें इन्वॉल्व हो. सो एक एग्जांपल जो आप सब लोग जानते हैं, दैट इज लैंडस्लाइडिंग. सो लैंडस्लाइडिंग का जो प्रोसेस है वो मास मूवमेंट की एक कैटेगरी है. एंड देन एवलांशे और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें जिसमें ग्रेविटी की वजह से टूटे हुए रॉक्स नीचे की तरफ ट्रैवल करें, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी. Alright, so these are the main highlights of chapter number 13. Then since we are talking about weathering, we are talking about erosion. So ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं अर्थ की सरफेस पर. सो अर्थ की सरफेस पर जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो डिफरेंट फीचर्स बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, हिल्स बन रहे हैं, और वैलीज, डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स के, दरियाओं का पैटर्न, स्ट्रीम्स का पैटर्न के किस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं. तो ये सब दुनिया का फेस डिफाइन करते हैं.
all these features, all these processes define the face of Earth. And the face of Earth is, what can we say? Like the face of Earth contains the features. अर्थ ज़मीन की शक्ल में सबसे ज़्यादा जो हमें फीचर नज़र आता है वो है लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर के अंदर जो उसके डिफरेंट फीचर्स हैं वो उसकी शक्ल है, और शक्ल को हम कहते हैं मॉर्फ, स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपको नज़र आ रही है, जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियो मीन्स अर्थ एंड मॉर्फ मीन्स शेप या फेस, शक्ल। सो जियो मीन्स अर्थ, morph means face, logy means study. So geomorphology, it is the science of landforms. लैंडफॉर्म कहें या दुनिया की मॉर्फोलॉजी कहें या दुनिया का स्ट्रक्चर कहें या दुनिया की शक्ल कहें, एक ही चीज़ है. सो जियोमॉर्फोलॉजी डील्स विद द लैंडफॉर्म्स एंड द फेस ऑफ लिथोस्फेयर. एक्चुअली हमारी सरफेस के ऊपर वो किस तरह से है. सो इस साइंस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? द ओरिजिन, द एवोल्यूशन एंड द form and spatial distribution. Let me highlight it all so that you can. Okay, so it is the science of landforms, the origin of landforms कि वो landforms बने कहाँ से, उसकी evolution कहाँ से वो originate हुआ, और उसके बाद वो किन किन processes से गुजरा, फॉर्म उसकी शक्ल क्या है, और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन जियोमॉर्फोलॉजी. और जब आप लोग थर्ड ईयर में आएंगे इंशाल्लाह, तो देयर इज़ अ सेपरेट कोर्स बाय द नेम ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. राइट, देन next terminology in this chapter is denudation. Denudation can be defined as the process which wears away or rearranges landforms. वो सारे प्रोसेसेस जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स या तो ख़त्म हो या लैंडफॉर्म्स दोबारा से बने. लाइक अब तक हम जितने भी प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, वी हैव सीन के फीचर्स आर फॉर्म्ड एंड देन डीफॉर्म्ड, फॉर्म्ड एंड देन डीफॉर्म्ड. एक साइकिल की फॉर्म में चीज़ें चलती रहती हैं. तो वो सारे प्रोसेसेस जिसकी वजह से एक पहाड़ का बनना और फिर उसका घिसना, फिर ख़त्म हो जाना, फिर बनना, तो वो सारे प्रोसेसेस एक्चुअली लैंड को, ज़मीन को बना रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट. अगर आपने डेजर्ट का टाइम लैप्स किसी ग्राफिक्स में देखा हो, तो उसमें सैंड ड्यून्स एक जगह पे बनते हैं और फिर चले जाते हैं. या किसी भी शॉपिंग एरिया या किसी भी रोड का टाइम लैप्स वीडियोज़ आती हैं जिसमें थिंग्स मूव वेरी फास्ट एंड देन वो एकदम से रश हो जाता है और फिर रश ख़त्म हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह से ज़मीन की जब शक्ल बन रही है, चेंज हो रही है, फिर कुछ और बन रही है. सो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं denudation. All those processes, those are denudation. There is the term denudation. Okay. Denudation processes के अंदर कौन कौन से like what further processes are involved in denudation? So we can say weathering, mass movement, erosion, transportation, and deposition. Weathering, I have already explained it a while ago, defined it a while ago, that weathering is the process of breakdown of rock, yeah, disintegration of rock, breakdown or disintegration of rocks. Mass movement is the movement of broken rock due to gravity. Erosion is the process of transportation of broken rocks. Mass movement of erosion में ये difference है कि erosion किसी भी ज़रिए से ट्रांसपोर्ट हो या ब्रोकन रॉक्स किसी भी और तरीके से मूव कर जाएं अलावा ग्रेविटी के, अदर देन ग्रेविटी.
all the other forces like wind, water एंड ग्लेशियर, इन चीज़ों की वजह से जब रॉक्स मूव करें तो वो इरोजन कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स। और मास मूवमेंट क्या है? जब वो ट्रांसपोर्ट हो ग्रेविटी की वजह से। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड मास मूवमेंट। Then transportation, of course, the word is self-explanatory. How different material are transported. जैसे जब कोई रिवर फ्लो करता है तो उसके पानी के साथ बहुत सारी सेडिमेंट और सिल्ट उसके साथ ट्रैवल करती है। सो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होती है तो अल्टीमेटली उसका एंड ये होता है कि इट इज़ डिपॉजिटेड समवेयर और द अदर। सो दैट इज़ डेपोजिशन। एक जगह से मटेरियल को उठाया गया और फिर दूसरी तरफ उसे डिपॉजिट किया गया। सो ये लैंड डेनुडेशन के प्रोसेस हैं जिसकी वजह से अर्थ सरफेस की फेस या इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती रहती है। ओके, देन there is a phenomenon, and that phenomenon is called as dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium approach to landform. So what happens in this dynamic equilibrium कि अगर कहीं पे कोई लैंडफॉर्म वेदर आउट हो रही है या इरोड आउट हो रही है तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं डेपोजिशन होगी, ओवरऑल मटेरियल उसका सेम रहेगा। डायनामिक मीन्स चेंजिंग, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, एक ऐसा बैलेंस जो चलते फिरते कायम हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। So if we talk about any landform, any area, so within that area it has energy and it has like different types of energy, the heat energy, kinetic energy and the chemical energy. तो वो एनर्जी अगर रॉक्स को ब्रेक करने में इन्वॉल्व हो तो थोड़े टाइम के बाद वही एनर्जी डेपोजिशन करने में इन्वॉल्व होगी। सो ओवरऑल द थिंग्स विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। चीज़, वो सिस्टम या वो लैंडफॉर्म एक बैलेंस में रहेगा। दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। Then this is it. The dynamic equilibrium. The balancing act between tectonic uplift and reduction by weathering and erosion, between the resistance of rocks and the ceaseless attack of weathering and erosion. तो जितने भी प्रोसेस, लाइक एक प्रोसेस हो रहा है जो कि एक एक फॉर्मेशन है, डेपोजिशन है, तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, वो इसको वेदर करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा, वेदर या इरोड। सो इन शॉर्ट वी कैन से एक साइकिल, एक वो बैलेंस जो वेदरिंग, इरोशन, मास वेस्टिंग और डेपोजिशन के बीच में है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मॉडल है। ऑलराइट, देन इस इक्विलिब्रियम मॉडल में एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल चेंज होने लगता है, काइंड ऑफ इनकलाब या बड़ी तब्दीली। सो उस चेंज के आने से पहले जो स्टेज आती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड। It is the point
at which energy overcomes resistance against movement. क्या चीज़ है ये? This can be simply defined as formation of a new balance. क्योंकि अभी हमने बात की कि अर्थ के सिस्टम के अंदर या किसी भी लैंड फॉर्म के अंदर, लेट्स से पाकिस्तान या सिंध या कराची का जो एक इन्वायरमेंट है या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, वो इस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम में है कि यहाँ पर धूल मट्टी भी उड़ रही है, कहीं जाके डिपॉजिट भी हो रही है और एक सिस्टम मेंटेन्ड है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है हर जगह पे, स्पेशली ये उन जगहों पे है जहाँ पे इंसानी आबादी कम हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब वहाँ पर उसका थ्रेशोल्ड चेंज होगा। जैसे कल हमने पढ़ा था एक्सप्लोसिव इरप्शंस, राइट? एक्सप्लोसिव इरप्शन जब होती है तो व्हाट हैपेंस कि ज़मीन की शक्ल चेंज हो जाती है। अगर वो कोई कंपोजिट वोल्केनो था तो वो उस इरप्शन के बाद कैल्ड्रा की फॉर्मेशन ले लेता है। तो वो टाइम जब वो वोल्केनो इरप्ट होने वाला था तो वो दैट टाइम इज़ कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड, कि उसका जो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, अब वो इक्विलिब्रियम का लेवल चेंज होने जा रहा है। सो दैट इज़ जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड। और हर लैंडफॉर्म के अंदर ऑफ कोर्स हम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब 1 साल या 2 साल की कहानी नहीं है, बल्कि इट टेक्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। सो हम इक्विलिब्रियम मॉडल की बात करें तो हमारी एक इंसान के लाइफ टाइम के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम ही देख रहे होते हैं कि ज़्यादा चेंज नहीं आता और चीज़ें बैलेंस में रहती हैं। बट आफ्टर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें थ्रेशोल्ड आता है और उस थ्रेशोल्ड के बाद उसका इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। सो दिस इज जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड। नाउ स्लोप। जब हम लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो वी नो दैट द अर्थ सरफेस हैज़ वेरिइंग हाइट, वेरिइंग एलिवेशन। तो एलिवेशन का चेंज जब हम स्टडी करते हैं तो उसका जो बेसिक यूनिट है, where we study the elevation change, that basic unit is a slope. स्लोप सिंपली क्या है? ये दो एलिवेशन के बीच, दो डिफरेंट एलिवेशन के दरमियान जो एंगल बनता है वो स्लोप कहलाता है। द एंगल बिटवीन टू डिफरेंट एलिवेशन पॉइंट्स। और इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है। स्लोप्स और हिल स्लोप्स आर curved inclined surfaces that forms the boundaries of landforms। जब भी हम किसी लैंडफॉर्म की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं? माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटो, वैली एंड प्लेन एरिया। इसके अलावा वाइडली स्पेस्ड माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज। हर एरिया को हम अगर गौर करें तो उसकी जो बाउंड्री होती है या उस स्पेसिफिक लैंडफॉर्म की जो एज है, वहाँ पर हमेशा हाइट डिफरेंस आएगा। और जहाँ पे हाइट डिफरेंस या एलिवेशन डिफरेंस हो वहाँ पर आपको क्या फ़ीचर मिलेगा? स्लोप का फ़ीचर मिलेगा। चाहे वो महमूद हुसैन लाइब्रेरी जैसा स्लोप हो जिसका एंगल बहुत ज़्यादा है, या वो ऐसा स्लोप हो जो यूबीएल से वीएस की कैंटीन की तरफ जाते हुए स्लोप हो। So every landform has slope in its boundaries. Inclined surface होती है, तिरछी surface होती है। तिरछी इसलिए होती है कि slope का लाजमी part है कि one side of the slope will have higher elevation and one will have lower elevation। ये elevation difference है जिसकी वजह से slope बनते हैं। All right, then we have different types of slopes
I wonder if those slopes are over here. Yeah. So this is a typical structure of a slope. Yeah, and I need the screenshots of the participants, just like the way I had it yesterday. Because again, I cannot see the CR. Yeah, she's not here. So someone just take pictures of, take screenshot and then send. All right, so this is the structure of a slope and how these slopes are formed. So in the slope, you can see things are the loose material. वो rocks के pieces जो combined नहीं हैं वो नीचे की तरफ move कर रहे हैं और ये movement generally gravity की वजह से है. Okay, then I wanted to show you the different types of slopes. Just runs away all the time. Sorry. Okay. Structure of a slope. The first part is waxing slope. Now, the things which I'm discussing right now are the part ऑफ अ स्लोप के एक जनरल स्लोप के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद होते हैं. हमने अभी बताया कि स्लोप में एलिवेशन डिफरेंस होता है, इंक्लाइंड सरफेस होती है, तिरछी सरफेस होती है. तो उस तिरछी सरफेस के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? सबसे टॉप वाला पार्ट, दैट टॉप पार्ट इज कॉल्ड एज वैक्सिंग स्लोप. एंड उस वैक्सिंग स्लोप के फ़ौरन बाद एक छोटा सा, यूँ समझ लें कि गर्दन नेक जैसा एक पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द फ्री फेस. और आफ्टर द फ्री फेस वी हैव द डेब्री स्लोप. I'll show the illustration as well. डेब्री स्लोप यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट वो वैक्सिंग स्लोप. उसके बाद एक फ्री फेस के बाद जो एक ग्रेजुअल inclined feature है, that is debris slope. And then we have the waning slope, the last part, right? तो ये चार पार्ट हो गए. अब हम इसको इस illustration में आपको दिखा देते हैं. Here, ये typical structure है एक slope का. So this top part is called as the waxing slope. और इसकी surface convex होती है. Convex means बाहर की तरफ को उभरी हुई. Okay, this is waxing slope. Then we have the free face, which is right after the waxing slope, and it looks like the neck of the top part of the slope. Or you can say कि ये जो ऊपर वाला part है, ये इसका अगर सर है waxing slope, तो free face उसकी neck है. Then this is the debris slope, जहाँ पे debris formation होती है. Debris कहते हैं rocks, टूटी हुई rocks का जो एक material होता है, rocks का चूरा, or you can say that, but yeah. So then after the debris slope, we have the waning slope. So debris और waning slope में difference ये है कि debris slope has greater angle. इसका angle थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पर. And waning slope is more gentle. इसमें angle थोड़ा कम हो रहा है. So this is waning slope. So these are the four parts of a slope, a typical slope. Okay, now after the slope we have
the main topic, which is weathering. So weathering processes break down the rocks. रॉक्स के टूटने को या रॉक के ब्रेक डाउन को हम कहते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग की दो मेन टाइप्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल। Physical weathering is also called as mechanical weathering, and then we have the chemical weathering. So if we look at the surface of earth, तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है कि टॉप पार्ट के अंदर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फेयर, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके रॉक्स मूवेबल होते हैं या वेदरेबल होते हैं, जिसके अंदर टूटने की सलाहियत होती है। और अंडर दैट एक लेवल आता है जब जिसके बाद इरोजन नहीं हो सकती है। दैट लेवल or that part of the lithosphere is called as bedrock. रॉक का वो हिस्सा या हमारी सॉइल का वो टॉप मोस्ट पार्ट which has the tendency to break or which has the tendency to weather, that is called as regolith, यहाँ लिखा हुआ है। And the stronger, the more resistant, जो ज़्यादा resistant हो वो part कहलाता है bedrock, which does not erode generally. Okay, so weathering की दो main types, physical and chemical. कौन सा part weather out हो रहा है उस part को हम कहते हैं regolith, और जिस पे वेदरिंग नहीं होती या वेदरिंग के बाद ज़मीन का जो हिस्सा एक्सपोज आउट हो जाता है उसको हम कहते हैं बेड रॉक। और अल्टीमेटली वो बेड रॉक ऊपर आ जाती है, तो कुछ सालों के बाद वो बेड रॉक रेगुलिथ बन जाता है और फिर नीचे एक नई बेड रॉक बन जाती है। दैट साइकिल गोज ऑन। राइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलिथ की, सॉइल की और पेरेंट मटेरियल। ओके, दिस पेरेंट मटेरियल, एक्चुअली द पेरेंट मटेरियल कहते हैं बेड रॉक को। Yeah, here it is. Bedrock is the parent material from which weathered regolith and soil develops। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की बात बताई कि नीचे वाली जो सरफेस होती है स्ट्रॉन्गर या मोर रेजिस्टेंट, वो एक टाइम के बाद ऊपर आके उसका एक हिस्सा वीक हो जाता है और वो वीक हिस्सा वो पार्ट है जिसके अंदर वेदरिंग होगी। सो दैट वीक पार्ट इज रेगुलिथ, और अगर वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करे तो वो सॉइल है। Then when the regolith breaks into smaller parts, smaller fragments, उसको हम कहते हैं sediment. Sandy unconsolidated fragmental material is called as sediment. Sediment किससे बना है? रेगोलिथ से। और रेगोलिथ किससे बना है? बेडरॉक से। So I am keeping today's lecture up till here, और फिर इंशाल्लाह we'll continue that in tomorrow's class.